ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة سورة الروم آية نمبر 21 وقال جل شانه في موضع آخر هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها أزواجا ليسكن إليها سورة الأعراف آية نمبر 189 وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المبارك خير النساء من تسرك إذا أبصرت صحیح الجامع صححہ الالبانی معزز سامعین حاضرین مجلس آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع سخن ہے خوشگوار ازدواجی زندگی کے رموز دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو کوئی فرد بشر ایسا نہیں جسے خوشی یا خوشگوار زندگی نہیں چاہیے ہر بنی آدم ہر فرد بشر کی ایک ہی تمنا ہے کہ کیسے اور کب خوشی یا خوشگوار زندگی حاصل ہو خصوصاً ازدواجی زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دو ہی جگہ تسکین قلب کا ذکر کیا ہے ان میں سے پہلی جگہ سورۃ الروم آیت نمبر 21 اور دوسری جگہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 189 ان دونوں آیتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک مرد اس کائنات میں کوئی بھی مرد ہو اس مرد کے لیے جو تسکین قلب کا ذریعہ ہے اس کو کیا بنایا یعنی دل کا سکون کس چیز سے حاصل ہوگا کیا دل کا سکون پیسہ دولت یا پھر دل کا سکون زینت آرائش یا پھر دل کا سکون کوئی جاہ و مکان یا پھر اور کوئی دوسری چیز اس سلسلے میں جو پہلی آیت ہے سورۃ الروم آیت نمبر 21 اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا آیت کا معنی نشانی ہوتا ہے کوئی بھی نشانی جس طرح اللہ رب العالمین نے قیامت کی جو دو طرح کی علامتیں ہوتی ہیں علامت صغریٰ اور کبریٰ ان سب کو بھی نشانی کہا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ میں جو مہر تھا مہر نبوت اسے بھی نشانی یا پھر اس کے علاوہ جیسے دجال کا ظہور ہوگا تو اس کی جو ایک آنکھ کانا ہوگا اس کو بھی نشانی کہا گیا ہے تو اس آیت میں جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان خلق لکم تمہارے لیے پیدا کیا ہے من انفسکم ازواج تمہاری ہی جنس میں سے تمہاری بیوی کو ازواج کا معنی جوڑا ہوتا ہے یعنی اور من انفسکم کا معنی من جنسکم کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری ہی جنس سے تمہارا جوڑا بنایا ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر مردوں کے لیے بیوی جنات میں سے یا پھر ملک یعنی فرشتوں میں سے اگر بناتا تو یہ جو دل کی تسکین ہے تسکین قلب یا سکون ہے یہ اس قدر حاصل نہیں ہوتا جس قدر ایک انسان کا جوڑا اللہ رب العالمین نے
मानी मर्द का जोड़ा मर्द ही में से, यानी इंसान का जोड़ा इंसान ही में से बना करके जितना फायदा हो रहा है उतना फायदा नहीं होता, बल्कि उसमें वहशत, डर, खौफ या फिर और दूसरी चीज होती। तो एक फायदा यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी जोड़ा तुम्हारी ही जिन्स से बनाया है। क्यों बनाया? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। सबसे पहला सवाल यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में लितस्कुनु, ये सकन लफ्ज है, ये मादा सकन है, यानी सकन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों जिक्र किया? अस्सकन को क्यों जिक्र किया? कि कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल कर सकता था यहाँ, तो अस्सकन को क्यों जिक्र किया? सकन को इसलिए जिक्र किया क्योंकि सकन, अस्सकन फिल लुगा, सकन लुगत में कहा जाता है अलहुदु बाद अल इस्तिराब, यानी परेशानी के बाद जो सुकून या ठहराव या सन्नाटा होता है उसे अलहुदु कहते हैं अरबी में। तो सुकून, सकन का माना यह होता है कि एक इंसान का दिल जब इस्तिराब या परेशानी में मुब्तला होता है तो उसके बाद उसको सुकून चाहिए, सुकून चाहिए या फिर ठहराव चाहिए। तो उसी सुकून और उसी ठहराव की वजह से लोगत के एतबार से कहा जाता है कि अस्सकन यानी अलहुदु बाद अल इस्तिराब, कि परेशानी के बाद जो यानी सुकून या इत्मीनान हासिल होता है तो उसे सकन कहा जाता है। क्योंकि इस कायनात में जो ये इंसान है ये हर वक्त कलक, कलक का माना है परेशानी, अरबी में कल्क कहते हैं परेशानी को। इंसान का जहन दिमाग या सोच फिक्र हर वक्त हर दम हर लम्हा परेशानी में मुब्तला होता है। तो जब एक इंसान का जहन दिमाग परेशानी या इस्तिराब में मुब्तला होता है तो उसे क्या चाहिए? यकीनन सुकून चाहिए उसे। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ सकन का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ताकि एक इंसान इस दुनियावी जिंदगी में जब तक वो जिएगा, वो जो हर लम्हा, हर दिन, हर महीना, हर साल जो परेशानी का सामना करेगा, उस परेशानी को दूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो इंतजाम किया है। दूसरा सवाल, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन लितस्कुनु इलैहा का जिक्र किया, ये सब नहवी बहस है, यानी लितस्कुनु इलैहा, इला का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अगर यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन लितस्कुनु माहा कहता, यानी मा का माना साथ होता है कि तुम सुकून अपनी बीवी के साथ हासिल करो, इस तरह का अगर माना होता कि तुम सुकून या तुम्हारी जो तस्कीन है या तुम अपनी बीवी के साथ हासिल करो, अगर ऐसा होता तो इस तरह का जिक्र करना चाहिए था, लितस्कुनु माहा कहना चाहिए था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन लितस्कुनु माहा को छोड़ करके लितस्कुनु इलैहा कहा है। इसलिए इस इला के बारे में मुतादिद अक़वाल है, उनमें से एक है अल इल्तिजा, यानी इंसान का जो ये दिल होता है, इल्तिजा का माना है कि जब इंसान परेशानी में मुब्तला होता है, जब एक इंसान का दिल परेशानी में मुब्तला होता है, और इंसान जब परेशानी में मुब्तला होता है तो उस वक्त उसे यानी कोई राहत की जगह कहा जाता है। इला के साथ अगर मा के साथ होता तो फ़कत मुजर्रद यानी अल मुजावरतु फिल मकान, किसी जगह में मुजर्रद ठहरने को यानी अस्सकन मा कहा जाता है। लेकिन अस्सकन इला उस वक्त कहा जाता है कि अस्सकन इला मैलुन नफ्सी बिलकुल्लिया, एक नफ्स का, हर एक इंसान के अंदर जो नफ्स है उसका मैलान जरूर है, किसी ना किसी चीज की तरफ हर एक नफ्स का मैलान जरूर है। किसी को या तो दौलत की तरफ मैलान है, किसी को शोहरत की, किसी को या फिर लड़की का मैलान होता है, या किसी को और भी किसी चीज का, लेकिन हर नफ्स के अंदर मैलान जरूर होता है किसी ना किसी चीज की तरफ। अस्सकन इला का माना यह होता है कि हुआ मैलुन नफ्सी, नफ्स का मैलान, बिलकुल्लिया कुल्ली तौर पर, इला शरीकिन, एक शरीक हमरा हम सफर की तरफ होता है। और ऐसा हमरा या हम शरीक की तरफ या हम नवा की तरफ मैलान होता है लितस्तमिद मिन्हु अल कुव्वत, जिससे वो नफ्स उससे कुव्वत हासिल करे, वल मोहब्बत, और मोहब्बत हासिल करे। एक माना यह होता है कि शौहर बीवी के दरमियान जो मोहब्बत होती है, मोहब्बत भी एक ताकत है, मोहब्बत भी एक ताकत है। जिस तरह कहा जाता है अलहुब्बु अल आमा, मोहब्बत अंधी होती है, तो उसी तरह अलहुब्बु अल कुव्वा, यानी मोहब्बत भी एक कुव्वत है, जिसको इस जगह में जिक्र किया है कि एक शौहर
अपनी बीवी से सिर्फ अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरा नहीं करता है, बल्कि उससे वो कुव्वत और ताकत हासिल करता है। अगर इंसान के लिए या फिर मर्द हजरात के लिए अगर बीबियां ना होती तो वो यूं ही कमजोर होकर के या तो कहीं मरा पड़ा हुआ रहता। इसीलिए इस जगह में कहा गया अल्लाह रब्बुल आलमीन अस्सकन इलैहा अन लितस्कुनु इलैहा कह करके ये साबित करना चाहता है कि इला का माना होता है कि एक नफ्स का कुल्ली मैलान एक हमसफर हमनवा की तरफ है जिससे वो कुव्वत और मोहब्बत हासिल करे। जिस तरह एक बच्चा कुल्ली तौर पर कुव्वत और वो राफत यानी मेहरबानी या फजल करम वो हासिल करे। इसके बाद और एक सवाल है, हुब्बुन का माना भी मोहब्बत होता है और मवद्दा का माना भी मोहब्बत होता है। तो अल-फर्क़ु बैनल हुब्बि वल मवद्दा, कुरान में इस आयत में मवद्दा का लफ्ज है और ऐसे ही आम अरबी किताबों में हुब्बुन का माना मोहब्बत होता है। इसीलिए हुब्बे नबी कहा जाता है यानी नबी की मोहब्बत को, हुब्बे रसूल यानी रसूल की मोहब्बत को, हुब्बुल्लाह यानी अल्लाह की मोहब्बत को। जिस तरह अहादीस में इस हुब्बुन का लफ्ज बहुत जिक्र है। हुब्बुन का लफ्ज जिस तरह एक ज़ईफ हदीस में कहा जाता है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, यानी अपने मुल्क से मोहब्बत करना यह ईमान का एक शाख है, ईमान की एक शाख है। ये ज़ईफ हदीस है। इस तरह यानी कि आखिरी ज़माने में लोगों के अंदर दो तरह की बुराइयां होगी, तो उनमें से एक है हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, यानी दुनिया से मोहब्बत और मौत को नापसंद करना। तो हुब्बुन का माना भी मोहब्बत है और मवद्दा का माना भी मोहब्बत है, लेकिन दोनों के अंदर एक फ़र्क यह है, हुब्बुन का माना जो मोहब्बत होता है, अल हुब्बु शुऊरुन फिल क़ल्बि क़द यख़फ़ा, हुब्बुन में जो मोहब्बत दाखिल होती है ये पोशीदा दिल का एहसास है सिर्फ, यानी कोई लड़का या कोई लड़की का है मैं मोहब्बत करता हूँ, यानी वो पोशीदा है दिल में, सिर्फ फ़कत एक एहसास है कि हाँ मैं मोहब्बत करता हूँ, हाँ मैं मोहब्बत करता हूँ, ये सिर्फ एक एहसास है। जो हुब्बुन में जो माना दाखिल है वो सिर्फ एक एहसास है कि हाँ मैं मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मवद्दा में जो माना है, मवद्दा का जो माना है उसमें एहसास नहीं, उसमें है अल हुब्बुल मौलिन, यानी जाहिरी अलल एलान मोहब्बत है, उसमें अलल एलान मोहब्बत है, उसमें कोई दिखावा नहीं है। और उसमें जो मोहब्बत है अल-मवद्दा में जो मोहब्बत है उसके बारे में कहा गया अल-मवद्दा तो हिया अस्सुलूक, यानी उसमें एक सुलूक दाखिल है। सुलूक का माना होता है कि जो जाहिरी मोहब्बत हो, जो जाहिर मोहब्बत हो, यानी हियल फ़िअलुल लज़ी युरा, उसमें ऐसा काम होना चाहिए जो काम बिल्कुल दिखे कि हाँ एक लड़का एक शौहर एक बीवी से मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत अमली जामा में दिखे, हाँ कि उसने उसके लिए क्या किया। ऐसा नहीं जो आम मोहब्बत के माना में जो दाखिल है एक फ़कत एक एहसास है, वो एहसास नहीं होना चाहिए, बल्कि मवद्दा में ये माना दाखिल है कि अगर शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है तो उसको वो दिखाना चाहिए कि हाँ ये मोहब्बत मैं अगर कोई मर्द कहता है किसी लड़की से किसी अपनी बीवी से कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो वो मोहब्बत दिखनी चाहिए किस तरह, यानी प्रैक्टिकली अमली जामा में वो दिखनी चाहिए। या फिर अल अल कलिमतुल लती तुस्मा, अगर कोई बात कोई कहे, दोनों में से कोई एक दूसरे से अगर कोई बात कहे तो वो बात सुननी चाहिए, या फिर कोई काम अगर हो तो वो काम दिखना चाहिए, ये है मवद्दा। और यही लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान इस आयत में यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ना कि वो हुब्बुन वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसके बाद ये जो मवद्दा वाला लफ्ज़ है, मवद्दा का माना है, अहसनुल बयान में इसकी तफसीर है कि वजाला बैनकुम मवद्दा व रहमा का माना है कि और तुम्हारे दरमियान यानी तुम दोनों के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेपनाह मोहब्बत और शफकत को रखा है, यानी शौहर बीबी के दरमियान बेपनाह मोहब्बत। बेपनाह ये आखिरी लफ्ज है, बेपनाह, इसके ऊपर और कोई लफ्ज नहीं है कि मतलब और कोई दूसरा लफ्ज होगा फिर समझा जाएगा कि मोहब्बत किस कदर यानी किस तरह की होती है। ये जो मोहब्बत है, ये मवद्दा, ये जो लफ्ज है, इस मवद्दा का जो लफ्ज है इसका मतलब, इसका जो राज है, ये क्या राज है कि कोई अगर कहे शौहर अपनी बीबी से या बीबी अपने शौहर से कि मैं मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मवद्दा बनाया है शौहर और बीवी के दरमियान, ये किस तरह ये मतलब साबित होगा, ये किस तरह साबित होगा? ये इस तरह साबित होगा, इसके रुमूज में से पहला रम्ज ये है, यानी पहला राज ये है कि अल कलिमतुल हानिया, अल कलिमतुल हानिया कहते हैं यानी मीठी बात, यानी इस कदर मीठी बात होनी चाहिए दोनों के दरमियान, शौहर बीवी के दरमियान, इस कदर मीठी बात होनी चाहिए शौहर और बीवी के दरमियान,
उसमें एक अरबी लफ्ज है कि तजीबु जिबाल मिनल जुमुदिल यौमी, यानी एक दिन की जो परेशानी है, अगर वो परेशानी पहाड़ के बराबर भी हो तो उस परेशानी को पिघला दे। इस तरह की मीठी बातें होनी चाहिए एक दूसरे के दरमियान, तभी जाकर के ये साबित हो गए, तभी जाकर के ये साबित होगा कि हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो शौहर और बीवी के दरमियान जो मवद्दत यानी मोहब्बत जो बनाया है वो तब जाकर के साबित होगा, उससे पहले साबित नहीं होगा। यानी इस तरह के कलिमतुल हानिया होनी चाहिए। उसके बाद अल कलिमतुल हानिया के बाद अल एहतमाम होना चाहिए, दोनों के दरमियान इस कदर एहतमाम होना चाहिए, और उस एहतमाम में दोनों बराबर है, यानी उस एहतमाम में दोनों बराबर है कि दोनों फरीक में से अयब्दु कुल्लु फरीक मिनहुमा बिमा युहिब्बुहुल आखर, यानी दोनों फरीक में से, शौहर और बीवी में से जो एक दूसरे, यानी कोई ऐसा काम दोनों में से कोई एक करे जो दूसरा पसंद करे, तभी जाकर के वो एहतमाम शरीयत के मुताबिक है, वरना वो एहतमाम शरीयत के मुताबिक नहीं है। और वो एहतमाम अफकार में भी सेम होना चाहिए, यानी सोच और फिक्र में भी, दोनों की सोच और फिक्र में भी सेम होना चाहिए। आम ऐसा ही यानी शऊर अलमुशारा, यानी शऊर में भी दोनों का एक होना चाहिए, तभी जाकर के समझा जाएगा कि दोनों के दरमियान यानी एहतमाम है। वरना कोई महसूस कर रहा है और कोई किसी को बिल्कुल महसूस ही नहीं है तो वो फिर एहतमाम नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, किसी को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रहा है, वो भी एहतमाम नहीं है, तब भी इज़्दिवाजी जिंदगी खुशगवार नहीं हो सकती है। तो इसीलिए जिस तरह मीठी बात अल कलिमतुल हानिया होनी चाहिए, सेम उसी तरह अल एहतमाम भी होना चाहिए, और इस कदर एहतमाम होना चाहिए कि दोनों की सोच फिक्र हर एक में सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए, तभी जाकर। और फिर ये जो मवद्दा वाला जो लफ्ज है, ये किस तरह, इसको अगर कोई इजहार करना चाहे, इजहार मवद्दा किस कदर होगा, यानी उस सिलसिले में कहा गया है कि अल इब्तिसाम, इस तरह मुस्कुराहट होनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराहट होनी चाहिए कि पूरे दिन की थकान को दूर कर दे। या फिर उसके अलावा इजहार मवद्दा में यह बात कही गई है, इजहार मोहब्बत में, इजहार मवद्दा में यह बात कही गई है कि दोनों में से यानी अल हदियुल मानवी कहा जाता है एक लफ्ज। अल हदियुल मानवी का माना है मजाजी तोहफा। कोई भी चीज दो तरह की होती है, एक हकीकी होती है, एक मजाजी होती है। तो जो मजाजी तोहफा है वो ये है, यानी शौहर बीवी दोनों में से असनाउ अमामल अबना होना चाहिए। असना का माना है तारीफ करना, कि दोनों में से शौहर और बीवी दोनों में से एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए अपनी औलाद के सामने, तभी जाकर के इज़्दिवाजी जिंदगी खुशगवार होगी। कोई अगर शौहर अपनी बीवी की तारीफ ना करे अपनी औलाद के सामने, इसलिए कहा जाता है रहमत वाला जो उसके बाद एक लफ्ज है, तो उसमें मुफस्सिरीन लिखे हैं रहमत का माना है शफकत, मेहरबानी, वो एक अहम तालीम है। और उसके बारे में कहते हैं कि ये जो रहमत की जो तालीम है, ये बच्चे कोई किताब पढ़ के नहीं सीखते हैं, ये रहमत की जो तालीम है, ये बच्चे, ये फैमिली तालीम है, ये घरेलू इल्म है, ये बच्चे अपने घर के अफराद को देख करके सीखते हैं, खुसूसन अपने माँ बाप को देख करके, वालिदैन को देख करके सीखते हैं। इसीलिए ये जो असना अमाम अल अबना है कि शौहर बीवी दोनों में से एक दूसरे की तारीफ अपने औलाद के सामने करे, और वो तारीफ करनी चाहिए। अगर कोई तारीफ करेगा तभी जाकर के इज़्दिवाजी जिंदगी खुशगवार हो सकती है। उसके अलावा यानी अल अफू अल फज़ल, यानी ज्यादती को माफ कर देना होगा। अगर किसी से कोई ज्यादती, यानी ज्यादती बातों में अगर ज्यादती हो जाए या फिर और भी किसी चीज में ज्यादती हो जाए, यानी जो लिमिट है, लिमिट क्रॉस अगर हो जाए, तो उसमें उसे माफ दरगुजर कर देना चाहिए। ये भी एक रुमूज में से एक राज है कि तभी जाकर के इज़्दिवाजी जिंदगी खुश होगी। या फिर और एक बात कहते हैं कि कलिमतुश शुक्र कहना चाहिए, दोनों में से हर एक को कलिमतुश शुक्र कहना चाहिए, कोई भी बात है एक दूसरे का शुक्रिया अदा करना चाहिए, तभी जाकर के इज़्दिवाजी जिंदगी खुशगवार होगी। इसके अलावा कहते हैं कि ये जो लफ्ज मवद्दा है इंसान के दरमियान, यानी जो बेपनाह मोहब्बत है, कभी कभा ये कम हो जाती है, और कम होने की वजह यह है वतअताइल मर्ज, बीमारी की वजह से बेपनाह मोहब्बत कभी खत्म हो जाती है।
शौहर और बीवी दोनों में से कोई अगर बीमार हो जाए तो एक दूसरे की जो बेपनाह मोहब्बत थी वो कम हो जाएगी वो मोहब्बत। या फिर वज़ीक रिज्क, रिज्क में अगर तंगी आ जाए तो उसमें भी ये जो बेपनाह मोहब्बत है एक दूसरे से ये भी कम हो जाएगी। या फिर वल इख्तिलाफ़ात शदीदा, यानी अगर सख्त इख्तिलाफ हो जाए दोनों के दरमियान तभी भी ये जो बेपनाह मोहब्बत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस सिलसिले में ये बात है कि ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में वजाल बैनकुम मवद्दा व रहमा जो कहा है, रहमा का माना होता है, मवद्दा का मफहूम होता है ये शर्त के साथ है, यानी इस दुनिया में कोई किसी को मोहब्बत बगैर शर्त के नहीं करता है, कोई किसी को मोहब्बत। हम लोग अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, यानी अल्लाह से या रसूल से तो जन्नत के बदले में करते हैं, यानी उसकी बातों पर अमल करके हमें जन्नत चाहिए। उसी तरह दुनिया में कोई अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो शर्त के साथ है, मशरूत, यानी शर्त और मशरूत की तरह है कि कोई या तो खूबसूरती की वजह से मोहब्बत करता है, कोई या तो दौलत की वजह से मोहब्बत करता है, या तो कोई उसे कोई चीज़ देता है, हदिया तोहफा गिफ्ट, उसकी वजह से करता है। रहमत में जो लफ्ज़ यानी रहम करम या शफ़क़त जो है इसमें कोई शर्त नहीं होता है, रहमत में कोई शर्त नहीं होती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले मवद्दा का लफ्ज़ जिक्र किया, आखिर में रहमा को जिक्र किया, इसलिए कि मवद्दा कभी जब तंगी हालात होगी तो उस वक्त तो ख़त्म हो जाएगी, तो तब तो फिर इज़्दिवाजी ज़िंदगी फिर बिखर जाएगी। इसलिए आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमा को रखा है ताकि ये इसमें कोई शर्त नहीं है, ये बिला शर्त कोई किसी पर रहमत या फिर शफ़क़त करेगा बिला शर्त, किसी चीज़ के बदले में नहीं है। शर्त मशरूत वाला मामला इस तरह होता है कि एक उसूल है उसूल फ़िक़्ह में, इदा फ़ात शर्त फ़ातल मशरूत, नबी कायदा भी है, यानी जब शर्त ख़त्म तो मशरूत भी ख़त्म, इज़ा सक़तल अस्ल सक़तल फ़रा, यानी जब अस्ल ख़त्म हो जाता है तो फ़रा भी ख़त्म हो जाता है। तो ये जो मवद्दा में जो शर्त है, क्योंकि शर्त लगा करके मुअद्दा यानी वो बेपनाह मोहब्बत होती है, जब शर्त ख़त्म तो मशरूत भी ख़त्म। लेकिन रहमत में शर्त नहीं है, इसलिए रहमत में इस तरह होना चाहिए कि शौहर बीवी दोनों में से कि शौहर को चाहिए कि हर लम्हा हरदम बीवी पर शफ़क़त करे, खुसूसन बीमारी के वक्त शफ़क़त करनी चाहिए, खुसूसन बीमारी के वक्त मर्द को चाहिए या शौहर को चाहिए कि बीवी से शफ़क़त से पेश आए, नरमी से पेश आए। और इसकी ज़िद औरत को चाहिए कि शौहर की जब तंगदस्ती हो यानी उस्र, जब तंगी हो तो उसे सब्र करना चाहिए। ये दोनों चीज़ अगर है शौहर बीवी के दरमियान तभी जा कर के इस कुरानी आयत पर उन दोनों का अमल होगा, वरना अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो कुरानी हदीस पर अमल नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कुरानी आयत है ये दो जगह में तस्कीन कल्ब का जिक्र हुआ है, और इस चीज़ को जब हम लोग कहते हैं या समझते हैं तो सिर्फ एक जगह सकन से जिमा मुराद है, यानी तुम अपनी बीवी से जिमा करो वही सुकून का जरिया है। तो उसे सुकून का जरिया नहीं कहा गया है कि सिर्फ फ़कत जिमा सुकून का जरिया नहीं है, बल्कि सुकून का जरिया ये जो बोला है कि अलमवद्दा अलहुब्बुल मौलिन, यानी ज़ाहिरी मोहब्बत है और ये कई चीज़ों के साथ मुंसलिक है, जिस तरह नरमी बातें, मीठी बातें, एहतिमाम, मुस्कुराहट, या फिर एक दूसरे की ज़रूरत को समझना, या फिर औलाद के सामने तारीफ़ करना एक दूसरे की, इन तमाम चीज़ों के साथ मुंसलिक है। कोई इसको यानी इस आयत का जो ये मफहूम नहीं है कि फ़कत कोई समझ ले कि यानी बीवी का शौहर के पास रहना ही सुकून कल्ब का ज़रिया है, ये बिल्कुल नहीं है। ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें अगर होगी तभी जा कर के वो बात मुकम्मल होगी, वरना वो अधूरी बात है। उस वक्त ये नहीं समझा जाएगा कि ये तस्कीन कल्ब का ज़रिया है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हदीस में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया वक़ूलु लिन्नासि क़ौला या वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना। हुस्ना का माना है अच्छी बातें, नरमी बातें, मीठी बातें, कि लोग उससे मीठी बातें करनी चाहिए, ये आम हुक्म है। और इस हुक्म को इस इज़्दिवाजी ज़िंदगी के साथ जोड़ करके ये साबित करना है कि शौहर बीवी में से दोनों को चाहिए कि एक दूसरे के साथ नरमी से पेश आए, अच्छी बात करे, मीठी बात करे। अगर कोई कड़वी बात यानी तलखी या कड़वी बात को इख्तियार करता है तो ये जो इज़्दिवाजी खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी के जो रुमूज़ है उनमें से ये नहीं पड़ता है, और उस वक्त इज़्दिवाजी ज़िंदगी खुशगवार नहीं होगी। इसके अलावा एक दूसरे को मतलब फजल करम से पेश आना चाहिए। कुरानी आयत का एक टुकड़ा है कि वला तनसौ फजला, कि तुम लोगों को चाहिए कि फजल को यानी फजल करम को नहीं भूलना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर फजल करना चाहिए।
फजल, अगर कोई किसी के ऊपर फजल करेगा तभी जा करके ये जो रिश्ता है ये मजबूत होगा, वरना अगर कोई एक दूसरे के ऊपर फजल या करम नहीं करेगा तो ये रिश्ता मजबूत नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो इब्तिसाम वाली बात है, एक हदीस में है, मैंने जो खुतबा मसनूना में उसका जिक्र किया कि खैरुन निसा, औरतों में से बेहतर वो औरत है मन तसुरुका, जो तुम्हें खुश कर दे, इदा अबसरता, जब तुम देखो उसकी तरफ तो वो तुम्हें खुश कर दे, यानी तुम्हारी दीदा, यानी तुम्हारी जो निगाह है उसकी तरफ जब पड़े या तुम्हारा जब दीदार हो तो उससे तुम उसकी दीदार से खुश हो जाओ, तो ये उस वक्त ये उसकी दलील है कि, और भी दूसरी हदीस में इसी बात का जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी जन्नती औरत के औसाफ में से एक वस्फ, एक सिफत ये भी है कि मर्द जब शौहर जब बीवी की तरफ देखे तो वो शौहर खुश हो जाए, तो वो औरत उस औरत के बारे में कहा जाएगा कि जन्नती औरत के जो औसाफ हैं उनमें से एक वस्फ उसके अंदर है। अगर वो नहीं है, अगर वो खुश नहीं होता है तो फिर ये नहीं समझा जाएगा कि वो औरत जो जन्नती औरत के औसाफ में से एक वस्फ उसके अंदर होना चाहिए, वो वस्फ नहीं है, वो नहीं समझा जाएगा। इसीलिए इज़्दिवाजी ज़िंदगी यानी खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी के रुमूज़ में से हम लोग पहला रम्ज़ ये समझेंगे कि मीठी बात, अच्छी बात, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना। उसके बाद यही समझेंगे, एहतिमाम समझेंगे, जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द के बारे में कहा अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरत के ऊपर हाकिम। इस आयत में भी एक बात यह है, दौरे हाजिर में मर्द को औरतें सिर्फ शौहर समझते हैं और कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन इस आयत में जब कव्वाम का लफ्ज है, कव्वाम का माना सिर्फ शौहर नहीं है, कव्वाम का एक माना मुअद्दिब है, यानी अदब सिखाने वाला। कव्वाम का एक माना मुअद्दिब यानी अदब सिखाने वाला, यानी शौहर अपनी बीवी को अदब सिखाएगा। एक माना मुअल्लिम है, कव्वाम का माना एक माना मुअल्लिम है, उसकी तफसीर ये है कि एक माना मुअल्लिम है, यानी वो बाहैसियत मुअल्लिम अपनी बीवी को वो सिखाएगा, कोई भी तालीम वो सिखाएगा और उन्हें सिखाना चाहिए, तभी जाकर के वो अगर नामालूम है तो वो सीख जाएगी। और ये मुअद्दिब, तो अगर कोई औरत अपने शौहर के बारे में ये ख्याल रखे कि ये मेरा मुअद्दिब है या फिर मुअल्लिम है, तो कोई भी अगर गलती होगी तो वो खुद कहेगी कि आप मुझे सिखाइए, या फिर जब वो डांटेंगे या फटकारेंगे या कोई भी सख्ती करेंगे तो वो समझ आएगी कि ये मेरा तो मुअद्दिब है, ये मुझे अदब सिखाने वाला है, ये हाकिम है। जिस तरह एक अदालत में हाकिम फैसला करता है, तो सेम उसी तरह कव्वाम का एक माना हाकिम भी है कि शौहर बीवी के लिए हाकिम है, वो जो फैसला करेगा वही फैसला अटल है और वो आखिरी फैसला है, उसके आगे नहीं चलेगा कोई फैसला, क्योंकि वो हाकिम है, मुअद्दिब है और मुअल्लिम है। इसके बारे में कहा गया कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि मर्द औरत के ऊपर जो हाकिम है, ये बात है। तो इज़्दिवाजी ज़िंदगी में खुशी लाने के लिए औरतों को खुसूसन ये सोचना चाहिए कि ये फ़कत मुजर्रद सिर्फ शौहर नहीं है कि इसके साथ मेरी शादी हुई है तो ये शौहर है, ये इस्तिमता का सिर्फ जरिया नहीं है कि सिर्फ फ़ायदा उठाओ, इस्तिमता का ये जरिया नहीं है, बल्कि ये मुअद्दिब है और मुअल्लिम है और हाकिम है। तो ये इसके बारे में कोई औरत अगर ये सोचे तभी जा कर के उनकी ज़िंदगी में खुशी आ सकती है, कोई अगर ये ना सोचे तो कैसे खुशी आएगी। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अल मरातु सालिहा, कि पूरी दुनिया एक सामान है, समझ लीजिए पूरी दुनिया एक सामान है, लेकिन उनमें बेहतर सामान या कीमती उम्दा सामान एक सालिहा औरत है, यानी सालिहा बीबी है, परहेजगार बीबी है। परहेजगार बीबी के औसाफ में से एक वस्फ ये भी है कि वो कनाअत पसंद होगी, काने होगी। कनाअत पसंद का माना ये है कि उसके शौहर की जितनी उसात है या जितनी ताकत है कि उसके लिए जितना कुछ कर पाए, जितना मिले, जिस कद्र मिले, जिस कैफियत से मिले, उसे यानी कनाअत करना होगा, उसे मान लेना होगा कि यही सब कुछ है। अगर वो उससे ज्यादा मजीद अगर तलब करती है तो फिर वो जो औसाफ है जन्नती औरत के औसाफ में से वो औसफ उसके अंदर नहीं है, तब वो औसफ उसके अंदर नहीं है, ये नहीं समझा जाएगा कि उसके अंदर ये वस्फ है। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کوئی بھی کام جس طرح علم اولاً علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہابی علم ہوتا ہے، ایک کسبی علم ہوتا ہے. وہابی علم یعنی اللہ جسے عطا کر دی ہوئی، جس طرح امام ابن قیم، امام ابن تیمیہ، امام بخاری، ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو علم دے دیا تھا. وہابی علم ہے، ورنہ کوئی پیج دیکھتے ہی مطلب یاد ہو جانا. اور ایک کسبی علم ہوتا ہے، مطلب جسے حاصل کرنا پڑتا ہے، محنت کر کے اسے حاصل کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد بھی ایک ہوتا ہے کتابی علم اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل علم یعنی تجرباتی علم. کتابی علم کتاب پڑھ کے حاصل ہوتا ہے اور تجرباتی علم یہ تجربہ سے حاصل ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتابی علم سے تجرباتی علم زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم لوگ قرآنی آیت اور حدیث یہ سب کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن اسے وہی کتابی علم کی طرح رکھ دیتے ہیں کہ یہ صرف سننے کی بات ہے، سن لیتے ہیں، لیکن اس کو جو تجرباتی عملی جامہ پہنانا ہے اسے ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں. آج دور حاضر میں یہ جو ہر طرح کی جو قحط سالی یعنی فقدان انسانیت، ہر جگہ ہر وقت فقدان جو انسانیت جو ابھی مر گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف یعنی کتابی علم سمجھتے ہیں، ہر چیز کو کتابی سمجھتے ہیں. سننے کی بات ہوتے ہیں سن لیتے ہیں، لیکن اس کو عمل میں نہیں لاتے ہیں کوئی بھی چیز ہو. ورنہ شریعت میں کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسا گوشہ خالی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یعنی اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت نہ کی ہو کہ زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے. اگر ایسا ہوتا تو پھر کتاب و سنت کو مطلب کوڈ آف لائف نہیں کہا جاتا ہے کہ زندگی کا یہ کوڈ ہے. اگر کتاب و سنت کو کوئی پڑھے گا تو زندگی گزارنے کا طریقہ ان کو معلوم ہو جائے گا. اگر کوئی کتاب و سنت کو نہیں پڑھے گا تو انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ زندگی کیسے گزارے. لیکن زندگی تو دو طرح سے ہی گزار سکتے ہیں، کوئی گناہ کر کے گزارے گی اور پھر کوئی نیکی کر کے. تو یہ جو کتابی علم ہے، ہر چیز کو ہم لوگ کتابی علم یا سنی علم نہ سمجھیں، اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ جو تسکین قلب ہم لوگ سنتے ہیں کہ تسکین قلب مردوں کے لیے عورت ہے، اور عورت بھی جانتی ہے کہ ہم ہیں، لیکن وہ تو جانتی ہے خود کہ ہم ہیں، لیکن کس طرح ہے وہ نہیں جانتی ہے کہ کس طرح ہے. مرد بھی جانتے ہیں کہ ہم اس کے حاکم ہیں، لیکن کس طرح ہے. اب کسی مرد کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مطلب ایک فیملی کس طرح چلے گی، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اسے کتنی محنت کرنی چاہیے. مرد کو بھی پتہ نہیں ہوتا، بہت سارے مرد کو پتہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح اکثر عورتوں کو پتہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم جو ایک مرد کے لیے ایک حدیث میں ہے کہ من تزوج فقد استکمل نصف الایمان یا نصف الدین. یہ چیز اس لیے کہا گیا ہے کہ جو غیر شادی شدہ مرد ہے اس کے بارے میں اسلام یہی کہتا ہے کہ اس کا ایمان نقص ہے، یعنی آدھا ہے، نصف ہے، اس کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. کیوں؟ ایمان کی تکمیل، ایمان مکمل ہوتا ہے شادی کرنے کے بعد. کیونکہ ایک انسان کا آدھا گناہ اگر دنیا کی تمام چیزوں کے بارے میں وہ کرتا ہے تو آدھا گناہ کرتا ہے صرف لڑکی کو سلسلے میں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے شادی کر لیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو ایمان کو مکمل کرنے کا یہی مطلب ہے. جس طرح میراث کے علم کو کہا جاتا ہے کہ علم المیراث نصف العلم، کہ میراث کا علم وہ بھی نصف ہے، کیونکہ باقی جو علم ہے انسان جب زندہ رہتا ہے اس کے متعلق یہ علم ہے، لیکن علم المیراث جو ہے وہ مرنے کے بعد، تو مرنے سے پہلے آدھا، مرنے کے بعد آدھا، اسی لیے دونوں کو نصف کہا جاتا ہے. سیم اسی طرح ایک مرد اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا ہے کہ جب تک وہ شادی نہ کرے.
تو کوئی کہے گا کہ شادی سے پہلے تو وہ ہر کام کرتا ہے, نماز روزہ ہر چیز کرتا ہے, تو پھر کیوں نصف ہے, کیوں مکمل نہیں ہے, کیا کمی ہے؟ اس لیے کمی ہے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سینوں کے بات کو جانتا ہے کہ ایک انسان گرچہ سب کچھ کرتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ دلی اعتبار سے مطمئن نہیں ہے, اور دل کا ہی سب سے بڑا اعتبار ہے کہ انما الاعمال بالنیت ہے. اسی لیے تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح علم شریعت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور مرد عورت دونوں کو خوشگوار ازدواجی زندگی کے جو رموز میں نے آج کچھ مختصر ذکر کیا ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور یہ گزارش ہے کہ کوئی بھی چیز ہم لوگ سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.